माई सेल्फ शिवानी देवी। आई रीड इन 9th क्लास। मैं स्कूल नेम है शिव शक्ति कन्वेंट स्कूल कसारू। मैं सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ। मुझे मॉर्निंग वॉक जाना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं घर आके नहा के मंदिर जाती हूँ। मुझे मंदिर जाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। मंदिर से घर आके मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ। स्कूल के रेडी होने के बाद मैं बस स्कूल जाती हूँ। स्कूल जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्कूल जाके मैं पढ़ाई करती हूँ।
Principal Shiv Shakti Convent School, Kasaru. This school is located in district Bilaspur in rural area. Our school student Miss Shivani of 9th grade selected for Kisme Kitna Hai Dam final round. Heartiest congratulations to Shivani and all the best for the next round. शिवानी रूरल एरिया से आती है, बहुत ही शाई नेचर की बच्ची, परंतु ये जो हमारी किस्में कितना है दम टीम ने और स्पेशली बंसल सर ने इस बच्ची को इतना मोटिवेट किया कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। वो हर एक बाकी एक्टिविटीज़ में भाग लेती है, जैसे गेम्स में, और सिंगिंग और डांसिंग उसका फेवरेट है। तो ये बच्ची को मेरी हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं हिमाचल, आई फील आल्सो प्राउड ऑन हर। ये हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के लिए स्पेशली बहुत ही प्राउड की बात है कि हमारे शिव शक्ति कॉन्वेंट स्कूल कसारू की बेटी ने इतना अच्छा, इसका ये जो परफॉर्मेंस है डीडी पंजाबी पे भी आएगा, जिस लोग इसको देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं किसमें कितना है दम टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और शिवानी के पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, और सबको नए साल की शुभकामनाएं। स्कूल के हमारे एनुअल फंक्शन अभी 22 अक्टूबर को हुआ था, उसमें भी शिवानी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये बच्ची कई स्टेट्स में ये कंपटीशन हो रहा है किसमें कितना है दम, तो इसने 4 राउंड क्लियर करके 5वें राउंड में पहुंच गई। तो बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आई फील प्राउड ऑन यू शिवानी। नमस्कार, I myself Jamna Jyoti Singh. I am teaching in this school, Shiv Shakti Convent School, that is located in Kasaru. I am the class in charge of 9th class. This class is very good, and Shivani is studying in 9th class. She is very innocent girl. Her behavior is very very good actually. She has come in this year in 9th class फ्रॉम सोनी साइड, सोनी देवी माता, मतलब उसका नेचर बहुत ही अच्छा है एंड हर डांस इज फैबुलस। शी हैज़ क्लियर्ड 4 डांस राउंड्स एंड नाउ इन किसमें कितना है दम शी हैज़ क्लियर्ड 4 राउंड्स एंड नाउ माई बेस्ट विशेज आर विद हर फॉर द फाइनल राउंड। हर क्लासमेट्स आर ऑल्सो वेरी गुड and especially her behavior in the class is very very good. So today's our topic is narration. Narration has 2 types: direct speech, indirect speech. Just like for example is, she said to me, I am a teacher. So whatever is written here, this is what we call for this reported speech. And whatever is in the inverted commas, this is known as reporting verb, and this is reported speech. She said to me, this is reporting verb. I am a teacher, this is reported speech, because this sentence is said by someone else. So this is direct speech. Because direct speech is always spoken by the speaker, direct speaker. So how you will convert this sentence? She told me that now I is the first personal pronoun, it will change according to she. She was a teacher. Understand beta? Yes. So second example is, he said to me, you are going to school? Again, said to will convert into told. He told,
mean that you is I. You will convert according to me, that is me will convert it to I. So I was going to school. This is the type of direct speech. Direct speech is converting into the indirect speech, right? Yes. Next example is now. The teacher says, just like for example is honesty is the best policy. Now here the reporting verb is in present tense because the directing word is says. Says is the first form of the verb, so this is present tense. The teacher says that. Now this is the sentence honesty is the best policy. This is also the universal truth, and while the reporting verb is in present tense, it will never be changed. Only you will add the word that only. जब मैं स्कूल से घर आती हूँ तो फिर मैं घर में आके ड्रेस चेंज करती हूँ, फिर मैं खाना खाती हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करती हूँ, अपना होमवर्क करती हूँ, टेरेस पे जाके डांस की प्रैक्टिस करती हूँ, फिर मैं अपनी मम्मा के साथ अपना सारा घर का मतलब जो भी मम्मा के साथ काम करवाती हूँ, खेतों में काम करवाती हूँ, फिर मैं खाना बनाने में भी उनकी मदद कर देती हूँ और उसके बाद शाम को हम खाना खाते हैं। फिर सुबह उठ के भी मुझे जब लर्न करने का होता है तो मैं लर्न करती हूँ, फिर मैं टीवी देखती हूँ, टीवी में देख के मैंने डांस सीखा, फिर उसके बाद मैंने क्लासेस ली, तभी जाके मुझे डांस आया, मतलब टीवी में देख के मुझे ज़्यादा डांस आया। फिर हम मस्ती करते हैं, फिर उसके बाद हम सभी भाई बहन बहुत मस्ती करते हैं, तो फिर हम सभी खेलते हैं और हम बहुत अच्छे से रहते हैं। धन्यवाद। मुझे आरती करना और माता के भजन सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। हम सभी इकट्ठे होकर माता की आरती करते हैं। मैया हम सब उतारें तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती।
माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, ओ मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, भक्तों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन मंदिर में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैं पवन कुमार, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, तहसील घुमारवी, और मेरी बच्ची शिवानी देवी को बचपन से ही डांस का बहुत शौक है और डांस के साथ मेरी बेटी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। हर साल स्कूल से कोई ना कोई पोजीशन लेकर के आती है। जब घर पे शिवानी देवी फ्री होती है तो पढ़ाई का काम भी करती है और घर का काम भी करती है और मेरे साथ खेतों में भी काम करवाती है। बचपन में ये शरारतें बहुत ही कम करती है और ज़्यादातर पढ़ाई में ही ध्यान बहुत ज़्यादा रखती है। और शिवानी देवी जब भी इनको इनकार करते थे कि डांस का काम नहीं करना है तो ये इनके बहुत गुस्से हो जाती थी और बहुत ही इनके मेहनत और कैसे हम इसका आगे बढ़ोतरी में काम कर रहे हैं कि बच्चा कामयाब हो। मेरी बेटी शिवानी देवी किसमें कितना है दम पहले 4 राउंड पक करके और फाइनल राउंड में पहुंच गई है और मैं माता सोनदेव से यही दुआ करता हूं कि मेरी बच्ची फाइनल जीत के हमारे गांव का नाम रोशन करे।
नाम सत्या देवी है और मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर तहसील घुमारवीं गांव सोनू देवी से बोल रही हूँ। मेरी बेटी का नाम शिवानी देवी है और ये शुरू से ही डांस क्लास में इंटरेस्ट रखती है और ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है। शुरू से पहले तो अपने दादी जी के साथ रहती थी, उनके साथ खेलती कूदती थी और जब ये कोई 8 साल की थी उस टाइम की दादी एक्सपायर हो गई है और उसके बाद दादाजी के साथ रहती है। इसके पापा हैंडीकैपर है और ये पहले सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और यहाँ पर हमारे अब 8वीं के बाद यहाँ नज़दीक में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, तो हमने इसे यहाँ से नज़दीक जो पढ़ता है बद्दा घाट पिशारो फाउंडेशन स्कूल पढ़ता है, इसको वहाँ पर डाला हुआ है और हम इसे बड़ी मुश्किल से इसका पालन पोषण कर रहे हैं। और ये किसमें कितना है दम, इसमें 4 राउंड पार कर चुकी है और हमें माता रानी से यही दुआ करते हैं कि ये फाइनल में जीत कर आए। इसको डांस का बहुत शौक है लेकिन मैं इसको मना करती थी कि नहीं करना है, पढ़ाई में ध्यान दो, लेकिन फिर भी ये टीवी पर देखकर डांस सीखती थी और अब ये डांस कर रही है। मैं तो यही दुआ करती हूँ माता रानी से कि ये जीत कर आए और इसके पापा जो हैं वो हैंडीकैपर हैं, तो हम इसका पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। जय माता दी। छोटी क्लास में थी, अब से मेरे साथ खाना बनाना, घास लाना सारा काम करवाती है और भी वो जैसे कोई भी काम घर का छोटा बड़ा सारा करती है। खेल कूद में भी बहुत अच्छी है। ये जैसे यहाँ हमारे घर के पास माता रानी का मंदिर है, वहाँ पर भागवत वगैरह होता है, तो वहाँ पर ये जैसे नाच गाने का प्रोग्राम होता है तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। मुझे KKRG टीवी शो ज्वाइन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। KKRG टीवी शो बहुत ही अच्छा है। मैं थैंक्स करती हूँ अपने मम्मी पापा और अपनी पूरी फैमिली का, जो कि मेरी हर एक इच्छा पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। मेरे मम्मी पापा के कारण ही आज मैं फाइनल तक पहुँची हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं फाइनल जीत के आऊँ, अपने मम्मी पापा, अपने स्कूल, अपने गांव का नाम रोशन करूँ। नमस्कार, मेरा नाम ममता गौतम है और मेरी घर बैठी में और शिवानी मेरी कज़न सिस्टर है। इसको पढ़ाई करने के साथ साथ खेलने का भी बहुत ज़्यादा शौक है और ये डांस बहुत अच्छा करती है और बचपन से हम दोनों साथ में खेल रहे हैं, साथ में हमने डांस भी किया हुआ है और मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इसने किसमें कितना है दम के 4 राउंड पार कर लिए हैं और अब ये फाइनल राउंड में जा रही है। तो मैं यही
प्रार्थना करती हूँ कि ये फाइनल राउंड पार करके आ जाए। जब हम फ्री होते हैं तब हम लूडो खेलते हैं और सीरियल भी देखते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। मैं ग्राम डून सोनी देवी निवासी हूँ। तो मेरा जो लड़का है शिवानी का पिता है और ये सन 92 से अपंग है, एक बाजू का मालिक है और इसका जो है कोई काम नहीं कर सकता है, कोई झाड़ी वगैरह भी नहीं लगा सकता है। तो खेतों में भी काम करना इसके लिए बहुत मुश्किल है। तो इन बच्चों का गुजारा जो है सिर्फ एक गवर्नमेंट पेंशन लगी है, इसके लिए 1500 रुपये की। यह मुझे भी बुढ़ेपा पेंशन लगी हुई है। तो हम जो है इस बच्चे की चॉइस के लिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में अच्छी है, इस वास्ते उसी हिसाब से इस बच्चे की चॉइस के लिए जो है हम और बच्चों का भी जो है पेड़ घोड़ करके इसकी चॉइस को पूरा किए जा रहे हैं। और ये बच्चा पढ़ाई लिखाई में अपने स्कूल को टाइम लिए तैयार होकर के जाता है, उसी हिसाब से आता है। तो घर के काम में भी पूरा हमारा सहयोग देता है। ये बचपन से ही जो बच्ची थी ये मेरे साथ में बहुत लाड प्यार करती थी, इसी वास्ते आज दिन कभी वैसे ही इतना लगाव इसका जो है माँ बाप से नहीं जितना मेरे से है। कोई भी इसके पास वस्तु होती है, चाहे थोड़ी है बहुत है, तो हम इतना पैसा तो दे नहीं सकते हैं इसको, लेकिन जो भी 5-10 रुपये देते हैं तो ये बच्ची जो है उसका कोई भी आइटम अगर लेती है, बाजार से लेती है, तो दादा के हिस्सा साथ में लाती है। मेरी पोती शिवानी देवी किसमें कितना है दम, ये 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंची है। मैं भगवान और महामाया से प्रार्थना करता हूँ मेरी पोतरी फाइनल जीत जाए, अपने स्कूल का, हमारे घर का, हमारे गांव का, हमारे पड़ोस का नाम रोशन करे। गगन सा शांत हृदय था रो रहा, जहाँ हृदय की तुलना नील गगन से की गई है। इस काव्यांश में हृदय में है शांत साधारण धर्म और सावाचक शब्द है। कर कमल सा कोमल है, यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। कर में है कमल, उपमान है कोमल, साधारण धर्म है एवं सा अर्थात के समान वाचक शब्द है। पीपर पात रसित मन डोला, जब उपमेय को उपमान के समान दिखाया जाए अथवा किसी समान गुण के कारण दो वस्तुओं की तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब उपमा और उपमेय में अधिक समानता
के कारण एक रूपता आ जाए तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमा के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी एक और पहचान है, पंक्ति में मनु मानो मनुहु जनु जानो जयो इव आदि शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ नायिका का दुख दिखाने के लिए कवि बात को बड़ा चढ़ा कर कह रहा है। वीर को के ताप के कारण पलवर एक पक गए और गेहूं का हृदय फट गया, परंतु यह संभव नहीं है। नमस्कार जी, जय माता दी। मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर विलेज डून सोनी देवी में रहने वाली हूँ। शिवानी मेरी भतीजी है। उसको बचपन से ही डांस का शौक़ है। वैसे मेरी शादी को 5 साल ही हुए हैं, बट मैंने उसको जब से देखा है तो फंक्शन में या शादी में, हमारे यहाँ सोनी देवी माता का मंदिर है, वहाँ पे भी हमारे यहाँ मंदिर में भागवत होता है, तो वहाँ पे भी ये बच्ची बहुत अच्छा डांस करती है और ये पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी है। जब भी ये हमारे घर आती है तो मतलब अच्छे से बात करती है। इसका नेचर भी बाय नेचर बहुत अच्छी बच्ची है और डांस का इसको बहुत शौक़ है। तो मेरी माता रानी सोनी देवी से यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। मेरी भतीजी शिवानी देवी ये किस में कितना है दम के 4 राउंड क्लियर करके अभी फाइनल में पहुंची है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है माता रानी से भी कि ये फाइनल क्लियर करके अपने माता पिता का, हमारा भी और हमारे गांव का नाम रोशन करे। शिवाजी जो है वो हमारे घर ऊपर है, थोड़े इनके घर से मंदिर के पास। तो ये जब भी आती है तो बोलती है सूट सिल दो। इस बच्ची को सूट सिलवाने का और पंजाबी सूट पहनने का बहुत शौक़ है। मुझे KKHD शो का पता शिव शक्ति कन्वेंट स्कूल में जाके पता लगा। जब मैं शिव शक्ति कन्वेंट स्कूल में गई तो एक दिन वहाँ KKHD टीवी शो वाले आए और उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे अपना कोई भी टैलेंट दिखा सकते हैं, चाहे वो ड्राइंग का हो, डांस का, सिंगिंग का, कुछ भी आपको जो आता है वो आप करिए और आप इस टीवी शो में आके बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। तो मैंने अपना डांस में फॉर्म फिल किया। मेरा पहला राउंड शिव शक्ति कन्वेंट स्कूल कसारू में हुआ। मेरा दूसरा राउंड भी मेरे अपने स्कूल शिव शक्ति कन्वेंट स्कूल में ही हुआ। मेरा तीसरा राउंड भी वही हुआ। मेरा चौथा राउंड भी वही हुआ। अब मैं फाइनल के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। माता रानी की कृपा से शायद मैं इस राउंड को भी पार कर लूँ।
थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।